Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. How are you all? This is Mrs. Hafsa Ghaffar, Senior Teacher, Pakistan Studies, Divisional Public School, Chichawatni. Hope you are quite well, physically and mentally. I feel glad to be with you. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरा मुल्क कोरोना वायरस वबा की लपेट में है और कोरोना वायरस वबा की वजह से पूरा मुल्क जुज़वी तौर पर लॉकडाउन का शिकार है। ये लॉकडाउन आपकी तालीम के आड़े ना आए, इस सिलसिले में हमने आपके ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया है। उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको पसंद आएगी और ये आपके लिए ममदो मुआवन होंगे। तो आइए आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। द सरफेस ऑफ लैंड इन पाकिस्तान is not uniform. Due to this variation, temperature and amount of rainfall is not uniform in different areas of Pakistan. On the basis of these variations, Qazi Sayyiduddin Ahmad, a renowned geographer of Pakistan, divided Pakistan into following four major climatic regions in 1951. अजीज़ तलबा, हमारे पाकिस्तान में जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, काजी सईदुद्दीन अहमद जो कि एक मारूफ जोग्राफियादान हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इनको फॉलोइंग मेजर रीजन्स में तकसीम किया है, ठीक है, डिवाइड किया है। तो उनका अब हम मुताला करते हैं वन बाय वन। तो उसी सिलसिले में सबसे पहला जो मेजर क्लाइमेटिक रीजन है उसका नाम है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड क्लाइमेटिक रीजन। दिस क्लाइमेटिक रीजन इज कंप्राइज्ड ऑफ northern and western mountain ranges. In addition to the mountain ranges of Balochistan, continental effects are dominant in this climatic region due to distance and height from the sea. As the height of northern mountain ranges is well above 5,000 meters, the temperature remains below 0 degree centigrade in winter and between 10 degree to 20 degree centigrade in summers. Frequent rain associated with thunderstorm and intense snowfall is the characteristic feature of this climate on the mountain ranges of Himalaya. Karakoram and Hindu Kush. The amount of rainfall and snow is comparatively low in the western mountain ranges of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. जी स्टूडेंट्स, लेक्चर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा दूसरा पॉइंट है, हम मुताला कर रहे हैं मेजर क्लाइमेटिक रीजन का, जिनको काजी सईदुद्दीन अहमद पाकिस्तान के मारूफ जोग्राफियादान ने 1951 में मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया था। तो उसी सिलसिले का अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है सब ट्रॉपिकल
continental plateau climatic region. This climatic region is comprised of western part of Balochistan plateau. Continental effects are dominant in this region too. Areas of Noshki, Chagi, Haran, Nakandi are included in this region. The average winter temperature remains between 0 degree to 9 degrees centigrade and of summers above 32 degree centigrade. The amount of rainfall is low and is usually caused by western cyclones. Number third point is subtropical continental lowland climatic region. This climatic region is comprised of plains and deserts of Punjab, Sindh and Balochistan. Distance from the sea produces continental effects on this climatic region as well. Average winter temperature remains between 10 degree to 20 degrees centigrade and of summers above 32 degree centigrade. The amount of rainfall is low, produce ample rainfall. The last point is tropical coastland climatic region. The coastal area of Pakistan lies near the Tropic of Cancer. This region is comprised of coastal areas of Balochistan and Sindh. Maritime effect of the Arabian Sea is dominant on the climate of this region, which keeps the temperature moderate. Average winter temperature remains between 10 to 20 degrees centigrade and of summers between 21 to 31 degrees centigrade. Dear students, the characteristics features of this climatic region is the prevalence of sea breeze and land breeze. Sea breeze blows from sea towards land during the day and land breeze blows from land towards sea during the night. The temperature difference of day and night is the basic cause of this movement, although humidity remains high in the air. The amount of rainfall is low. Average annual rainfall remains between 125 to 250 millimeters, which varies seasonally. Season: a specific period of a year on the basis of climatic conditions is called season, i.e. temperature, air, rain, etc. Seasons of Pakistan. Pakistan is situated in the warm temperate region. The seasons found in Pakistan are winter season, spring season, autumn season, and summer season. First of all, we will study the winter season. In Pakistan, the winter season
starts in December and lasts up to the end of February. In this session, the average temperature in most areas of Pakistan remains below 18 degrees centigrade. In plain areas, the severeness of cold increases while mountainous areas receive heavy snowfall. The amount of rainfall is low as compared to summer season. Important source of rainfall in this season is western disturbances, cyclones, which enter Pakistan from the west. अज़ीज़ तुलबा, पाकिस्तान में मौसम सरमा जो है ये दिसंबर के एंड से लेके फरवरी तक चलता है और हमारे जो ज़्यादा इलाके हैं पाकिस्तान के यहाँ दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे सर्दी में शिद्दत होती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। और जो हमारा समर सीज़न है यहाँ पे रेनफॉल कम होती है। इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेनफॉल इन दिस सीज़न, क्योंकि जो वेस्टर्न साइक्लोन्स हैं पाकिस्तान के मगरिब से जब दाखिल होते हैं तो वो बारिशें बरसाते हैं। बहीरा अरब से आने वाली हवाएं भी मानसून की बारिशों की एक वजह बनती हैं। Second point is spring season. Weather in Pakistan from March to April is neither too cold nor too warm, and it remains fair too. However, the northern areas receive a low amount of rainfall associated with thunderstorm. In this season, the trees and plants bear new leaves and a variety of flowers. This is called spring season. Dear students, मौसमी बहार में दरख्तों पर और प्लांट्स पर नई कॉम्प्लें, नए पत्ते आ जाते हैं और ऐसा मौसम होता है कि ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पे मामूली मिक़दार में बारिशें होती हैं। आज का हमारा तीसरा पॉइंट है समर सीज़न। Start of May is the beginning of summer season in Pakistan, which lasts up to mid of September. The temperature increases and remains above 18 centigrade in most parts of the country. Plain areas, including deserts, experience intense heat. However, the temperature remains moderate in coastal areas due to maritime effect. In mountainous areas,
the intensity of heat remains too low. In summers, the pressure of air remains low in Pakistan. This low pressure system attracts wind from adjacent Arabian Sea and Bay of Bengal. These moisture, known as rainy season in Pakistan. Maximum rainfall occurs in northeastern Punjab and adjacent mountains. The amount of rain decreases further north, south and westwards. डियर स्टूडेंट्स, जो समर सीजन है यानी मौसम गर्मा, इसका आगाज मई के शुरू में हो जाता है पाकिस्तान में और ये सितंबर के वसत तक चलता है। इसमें दर्जा हरारत बढ़ जाता है। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है और बाज़ तो इलाके ऐसे हैं जैसे सिब्बी और जैकबाबाद है, वहाँ पे तो टेम्परेचर 53 तक रिकॉर्ड किया गया है। हमारी जो डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे तो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि गर्मी बर्दाश्त से बाहर होती है, उसमें इंटेंस हीट होती है। इसी तरह हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है, उसमें भी टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है, मोतदिल रहता है। क्यों? मैरीटाइम इफेक्ट की वजह से। ओके। और जो हमारे माउंटेनियस एरियाज़ हैं, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, उसमें भी जो इंटेंसिटी ऑफ हीट है वो लो रहती है, यानी इतनी ज़्यादा दर्जा हरारत नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ किन एरियाज़ में होता है? प्लेन एरियाज़ में, मैदानी इलाके में। अपर एरियाज़ और लोअर जो है ना, इन दरिया सिंध का बलाई मैदान और ज़ीरी मैदान जो है वो ज़्यादा, वो इलाके ज़्यादा शिद्दत वाले होते हैं, ज़्यादा गर्म होते हैं और डेंस पॉपुलेटेड भी हैं ये एरियाज़। आखिरी पॉइंट है आज के लेक्चर का, ऑटम सीजन। The weather is once again neither too hot nor too cold. In October and November, the amount of rain decreases too. There are frequent dust storms in southern Punjab and northeastern Sindh. The northern areas receive small amount of rainfall associated with thunderstorms. The trees and plants shed their leaves. This is called autumn season. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको रीडिंग करके सुनाया कि मौसम ख़ज़ां, इसको इंग्लिश में ऑटम सीज़न कहते हैं, इसमें दरख्तों के पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं। ट्रीज और प्लांट्स जो है शेड देयर लीव्स, ठीक है। और ऐसे मौसम में ना तो बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत होता है, ना नेदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, ना बहुत सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ये अक्टूबर और नवंबर में रहता है और बारिशें भी कम होती हैं इसमें, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंट डस्ट स्टॉर्म्स होता है ख़ास तौर पे साउदर्न पंजाब में और नॉर्थ ईस्टर्न सिंध में। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन वेजिटेशन एंड ह्यूमन लाइफ, यानी क्लाइमेट के वेजिटेशन पे और इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं। Variation of climate in different parts of Pakistan has a great impact on vegetation and human activities. Number one is impact of climate on vegetation. The forest
found in the mountainous areas of Pakistan above 4,000 meters are called alpine forest. They do not grow to their full height because of extreme snowfall and a short summer season. However, the forests which are found below 4,000 meters are comparatively dense. Here trees attain their full height because of adequate rainfall, temperature, and duration of summer season. These are found in northern areas, Mansehra, Abbottabad, in Khyber Pakhtunkhwa, Murree and Galyat in northern Punjab, and Quetta and Kalat in Balochistan. The climate of Balochistan plateau and Piedmont areas favors the growth of scattered dry forests and grassland. डियर स्टूडेंट्स, जो जंगलात माउंटेनस एरियाज में पाकिस्तान के पाए जाते हैं वो तकरीबन 4,000 मीटर की से अबव होते हैं, की बुलंदी पर होते हैं. ऐसे जंगलात को हम अल्पाइन फॉरेस्ट कहते हैं. वो अपनी मुकम्मल हाइट नहीं तक जा सकते और उसकी वजूहात क्या हैं. एक तो उसमें एक्सट्रीम स्नोफॉल रहता है उस एरिया में, और दूसरी वजह है कि वहाँ पे जो समर सीज़न है यानी मौसम गर्मा है वो बहुत थोड़ा टाइम के लिए होता है, कम वक्त के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यानी शॉर्ट समर सीज़न भी एक वजह है. ताहम वो फॉरेस्ट जो कि बिलो यानी 4,000 से मीटर से बिलो हैं वो कंपैरेटिवली डेंस होते हैं, घने होते हैं. तो यहाँ पे जो दरख्त हैं उनका हाइट फुल होता है क्योंकि यहाँ पे मुनासिब मिकदार में रेनफॉल होता है, क्योंकि उधर तो स्नोफॉल ज़्यादा था ना और समर भी शॉर्ट था. लेकिन यहाँ पे जो है ट्रीज़ जो यहाँ पे क्योंकि रेनफॉल भी एक मुनासिब एक एडिक्वेट रेनफॉल है, टेम्परेचर मुनासिब होता है और ड्यूरेशन ऑफ समर सीज़न जो है वो भी मुनासिब होता है. तो ये एक वजह है कि यहाँ के दरख्त जो हैं वो बिलो 4,000 मीटर्स होते हैं. अब ये किन एरियाज़ में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जी नॉर्दर्न एरियाज़ में, ये मानसहरा एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा में, और मरी एंड गलियात नॉर्दर्न पंजाब में है. इसके अलावा कोयटा और कल्लात बलूचिस्तान में है. द क्लाइमेट ऑफ बलूचिस्तान प्लेटू, जो ये बलूचिस्तान प्लेटूज उन एरियाज़ का जो तो मुर्तफ़ा एरियाज़ का जो क्लाइमेट है वो भी जो है फेवर करता है ऐसे उनको ग्रोथ में, ऐसे फॉरेस्ट और ऐसे ग्रासलैंड की. The climate of plain favors the growth of broad-leaved forest along the river bank. These are called बेला forests. यानी जो प्लेन एरियाज़ का क्लाइमेट है वो उसमें फेवर करता है कि ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट को, और ऐसे फॉरेस्ट जो कि ये दरिया के किनारे पर होते हैं, उगते हैं, इनको हम बोलते हैं बेला फॉरेस्ट. Away from the rivers, in open plain areas is found thorn bush type of vegetation. इसी तरह जो दरियाओं से दूर प्लेन एरियाज़ में जो हमें जो है थॉर्न फाउंड होते हैं, थॉर्न बुशेस, वो बुशेस टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है. इसी तरह अजीज़ तलबा जो डेजर्ट एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, इन डेजर्ट एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान वेयर द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली ड्राई एंड हॉट. ये बात आप सबको पता है क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने अपने लेक्चर्स में ये जिक्र किया है कि सहराई इलाकों में दर्जा हरारत हमेशा गर्म होता है और ड्राई होता है, हॉट भी और ड्राई भी. तो ऐसे एरियाज़ में
thorn scrubs and date palms are found. ठीक है, जबकि मॉडरेट क्लाइमेट वाले जो एरियाज हैं जैसे हमारे साहली इलाके हैं वो किसको फेवर करते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। आज का हमारा दूसरा और आखिरी पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़। हमने देखना है कि मौसम किस तरह इंसानी ज़िंदगी पर असर अंदाज होता है। आइए इसका जायज़ा लेते हैं। अजीज तलबा, द माउंटेनस एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर नॉट डेंसली पॉपुलेटेड. There is severe snowfall in winters which tends to keep the human activities limited. People store food items and those who have livestock shift their cattle in the Piedmont areas. The region remains disconnected by road blockages due to snowfall, while the air transport remains disturbed too. Life becomes paralyzed in winters. However, the summer is pleasant in this region. People reshift their cattle in the grassy meadows, uplands. Agriculture is also practiced on a limited scale, and corn is the most important crop of this region in summers. Besides apples, plums, apricot, peach, almonds and walnuts also grow well in this climatic region. Rainfall is frequent, which often result in the occurrence of landslides and floods. These hazards are a hurdle in the development of tourism in this region. जी तलबा, हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद नहीं हैं। यहाँ पे सीवियर स्नोफॉल होता है मौसम सरमा में, तो आप खुद ही सोच लें कि जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो वहाँ पे जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं या इंसानी जो ज़िंदगी है वो किस कदर लिमिटेड, इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस कदर लिमिटेड हो जाती हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोग अपनी फूड को स्टोर कर लेते हैं, यानी समर सीज़न जब होता है वो अपनी खुराक ज़ख़ीरा कर लेते हैं ऐसी इंटेंस कोल्ड वेदर के से बचने के लिए, क्योंकि वो आउटसाइड नहीं जा सकते। इसके अलावा ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं मैदानी इलाकों की तरफ, और ये रीजन जो है अक्सर यहाँ के रोड ब्लॉकेज और स्नोफॉल की वजह से ये डिसकनेक्टेड ही रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा एयर ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे अक्सर डिस्टर्ब ही रहती है, ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है मौसम सरमा में। और तमाम हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो मौसम गर्मा है वो बहुत प्लेजेंट होता है, बहुत खुशगवार होता है। लोग अपने मवेशियों को भी इधर से शिफ्ट कर लेते हैं मैदानी इलाकों में, लेकिन जैसे जैसे मौसम बेहतर हो जाता है, मौसम बहार और मौसम सरमा की आमद होती है, तो वो लोग दोबारा इन इलाकों की तरफ मूव कर जाते हैं। और इसके अलावा अजीज़ तलबा, जो हमारे मैदानी इलाके हैं, द प्लेन एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर डेंसली पॉपुलेटेड। वाई डेंसली पॉपुलेटेड? बिकॉज ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, यानी मैदानी इलाकों में आबादी बहुत गुंजान होती है और वहाँ पे लोगों के लिए बहुत फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं ताकि वो मुख्तलिफ टाइप की एक्टिविटीज़ सर अंजाम दे सकें। एग्रीकल्चर यहाँ के लोगों का अहम मौशी सरगर्मी है और वीट, ग्राम मेजर रबी क्रॉप्स, जबकि राइस, कॉर्न, कॉटन एंड शुगर कैन आर मेजर खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, द क्लाइमेट इज आल्सो फेवरेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। यहाँ पे सनतों के लिए भी आबो हवा बड़ी साजगार है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं वो फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे बहुत बेहतर हैं। और इसके अलावा जो हमारे सहराई इलाके हैं वहाँ पे जो डेजर्ट एरियाज ऑफ पाकिस्तान, दे आर नॉट डेंसली पॉपुलेटेड, वो बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद नहीं हैं। और इसका रीज़न भी आप सबको समझ आ गया कि क्या हो सकता है कि लाइफ रिमेन्स
tough due to hot and dry climatic conditions. क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है ना जब बहुत गर्म और खुश्क मौसम होता है ना बारिशें होती हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि सीवियर हीट होती है तो सोचें कि ऐसे इलाके में लोगों के लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है सो पीपल प्रेफर टू मूव इन प्लेन एरियाज rather than to living in these hot areas. Hot wind, known as Lu, blow during the day, which paralyze everything. That's all from my side for the time being. Thank you so much for listening my lecture with patience. Hope the conversation will help us in our future life. We will meet with same and other interesting topic again. Stay well. Till then, Allah Hafiz.